Rahim. This is part 2 for the chapter Top Performance Through Empowerment, Teamwork and Communication. That is chapter number 9. Learning goals are: describe why and how organizations empower employees, distinguish among the 5 types of teams in the workplace, identify the characteristics of an effective team, and summarize the stages of team development, relate cohesiveness and norms to effective team performance. We have already discussed these 4 learning objectives in our previous lecture. In this lecture, we will talk about describe the factors that cause conflict in teams and how to manage conflict. Next, explain the importance and process of effective communication, compare the different types of communication, and lastly, explain external communication and how to manage a public crisis. Let's have a quick review about team cohesiveness and norms. Team cohesiveness is the extent to which team members feel attracted to team and motivated to remain part of it. Team cohesiveness increases when members interact frequently, share common attitudes and goals, and enjoy being together. Cohesive teams quickly achieve high levels of performance and consistently perform better. हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जितना टीम कोहेसिवनेस एग्जिस्ट करेगा एक टीम के अंदर, उतनी ही टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तौर पर अचीव कर सकेगी। टीम कोहेसिवनेस जो होती है वो टीम को इकट्ठे मिलकर आपस में काम करने के लिए तैयार करती है। हर टीम के अंदर कुछ नॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं टीम नॉर्म्स आर द इनफॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट शेयर्ड बाय टीम मेंबर्स दैट गाइड देयर बिहेवियर। तो ये जो टीम नॉर्म्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हर टीम ने ये कोशिश करनी होती है कि वो पॉजिटिव टीम नॉर्म्स को डेवलप करे। Team conflict. Let's start with team conflict. What is a conflict? Conflict means when one person or group's needs do not match those of another, and attempts may be made to block the opposing side's intention or goals. तो ये conflict जो होता है ये natural है, ये exist करता है, ये conflict arise होता है, but this conflict has got 2 types: cognitive conflict and effective conflict. Cognitive conflict focuses on problem-related differences of opinion. Reconciling these differences strongly improves team performance. तो cognitive conflict का मतलब ये है कि काम करने के ऊपर या काम के तरीक़ेकार पर conflict है। अगर उसको हम रिजॉल्व कर लें तो डेफिनेटली उस कॉन्फ्लिक्ट से टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है, या हम इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बेहतरीन ऑप्शन को पिक करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। सो दैट्स व्हाई दे से दैट कॉन्फ्लिक्ट इज़ गुड। तो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काम से रिलेटेड है, इट्स नॉट अ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद हमारे पास है इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. Effective conflict refers to the emotional reactions that can occur when disagreements become personal rather than professional. तो ये ऑब्वियस है कि जब लोग प्रोफेशनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को छोड़कर, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाते हैं तो फिर मसाइल बढ़ते हैं और कभी भी टीम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाती। सो द टीम लीडर शुड फैसिलिटेट गुड कम्युनिकेशन सो दैट टीम मेट रेस्पेक्ट ईच अदर एंड वर्क कोऑपरेटिवली। तो टीम लीडर का काम है कि सारी टीम को साथ लेकर चले और इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। Importance of effective communication. Communication is the meaningful exchange of information through messages. Managers spend 80% of their time in direct communication with others. Company recruiters rate effective communication as the most important skill they are looking for in hiring new college graduates. कम्युनिकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। तो आजकल के दौर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं उनका फोकस ये होता है कि वो देखें कि एम्प्लॉय चाहे मार्केटिंग फील्ड का है, चाहे एचआर का है, चाहे फाइनेंस का है, किसी भी फंक्शन से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन में उसको अच्छा होना चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन को असेस करते हैं, क्योंकि मैनेजर्स का ज़्यादा टाइम जो है वो कम्युनिकेट करने में ही स्पेंड होता है।
The process of communication. Communication is a step-by-step process that involves 6 elements: sender, message, channel, audience, feedback and context. तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसके अंदर सेंडर कोई मैसेज जो है वो रिसीवर को भेजेगा और वो किसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होकर जाएगा, और रिसीवर ने जब उस मैसेज को सुनना है तो उसको फिर उसको डीकोड करना है। इनकोड करता है सेंडर, तो रिसीवर ने डीकोड करना होता है। और फिर नॉइज भी है, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो नॉइज का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कम्युनिकेशन के दौरान डिस्टरबेंस क्रिएट करे उसे हम नॉइज बोलते हैं। और इस नॉइज की वजह से मैसेज सही तरह से डिलीवर नहीं हो पाता है या रिसीवर उसको सही तरह से समझ नहीं पाता है, इसको हम नॉइज बोलते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. All communications occur in a situational or cultural context. The context can exert a powerful influence on how well the process works. So, communication in low context cultures tends to rely on explicit written and verbal messages. The examples are for the US, Switzerland, Germany, and Austria, which has a low context culture. Over there, the managers have to be very explicit in written and verbal messages. While communication in high context culture depends not only on the message itself, but also on the condition that surround it, including non-verbal cues, past and present experiences, and personal relationships between the parties. So the countries which have high context culture, Japan, Latin America, India, Pakistan, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करेगी तो ना सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए जो कल्चर है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, कि जिस भी कल्चर में हम कम्युनिकेट करते हैं हमें उस कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। हाउ डू पीपल परसीव कम्युनिकेशन इन दैट पर्टिकुलर कल्चर। अगर तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है तो हमें एक्सप्लिसिट रिटन और वर्बल मैसेजेस लिखने हैं, लेकिन अगर हम हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने ख्याल करना है कि नॉन वर्बल क्यूज, पास्ट एक्सपीरियंस और पर्सनल रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं। बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. These are the basic forms: oral communication, written communication, formal communication, informal communication, and non-verbal communication. We can describe these different forms of communication. What is oral communication? Oral communication is a communication that is transmitted through speech. Example क्या हो सकती है? Personal conversation, speeches, meetings, voicemails, टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज एक्सेट्रा। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये ओरल कम्युनिकेशन की हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू राइटिंग, जिसमें आप सिर्फ लिखेंगे, लिख कर कम्युनिकेट करेंगे। और इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? लेटर्स हैं, मेमोज हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिलीजेज, ईमेल, फैक्स, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप्स, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेट्रा। ये सारे के सारे रिटन कम्युनिकेशन है। Formal communication is transmitted through the chain of command within an organization to other members or to people outside the organization. इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? Internal memos, reports, meetings, written proposals, oral presentation, meeting minutes, external letters, written proposals, oral presentations, speeches, news releases, press conferences, etc. ये सब की सब जो हैं ये formal communication की examples हैं which take place inside the organization. And informal communication is transmitted outside formal channels without regard for the organization's hierarchy of authority. What are the examples of informal communication? Rumors spread informally among employees via the grapevine. अक्सर अफवाहें जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फैल जाती हैं और उसके लिए किसी भी हायरार्की की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इसकी स्पीड फॉर्मल कम्युनिकेशन से कहीं ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी जो है रूमर्स फैलती हैं। जैसे स्टूडेंट्स के यहाँ ये रूमर फैल जाए कि भी इम्तिहान कैंसिल हो गया है, कोई पेपर नहीं होगा, फौरन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, हालांकि ये फेक इन्फॉर्मेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Communication transmitted through actions and behaviors rather than through words. And what are the examples
of non-verbal communication: gesture, facial expression, posture, body language, dress, makeup. Non-verbal communication जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा असर रखती है। तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनका चेहरा, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं या उनके इरादे क्या हैं। Listening is receiving a message and interpreting its intended meaning by grasping the facts and feelings it conveys. So listening जो है, it can be cynical listening, it can be offensive listening, it can be polite listening, it can be active listening. हम देखते हैं कि ये cynical, offensive, polite और active listening क्या होती हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। Cynical listening is when receiver of a message feels that the sender is trying to gain some advantage from the communication. जब मैसेज भेजने वाला ये समझता है, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो ये समझता है, फील करता है कि जो मैसेज भेज रहा है या कोई बात करना चाह रहा है वो कोई एडवांटेज ले रहा है मुझसे, इस वजह से वो मुझे सुनाना चाह रहा है। What is offensive listening? Receiver tries to catch the speaker in a mistake or contradiction. तो ऑफेंसिव लिसनिंग के अंदर हर वक्त आप कोई जो है जो सेंडर है उसकी किसी बात को या किसी गलती को पकड़ने की कोशिश में रहते हैं या उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश में रहते हैं। पोलाइट लिसनिंग: रिसीवर लिसन्स मैकेनिकली टू बी पोलाइट रादर देन टू कम्युनिकेट। तो वो सिर्फ मशीनी तौर पर जैसे एक बात कह दी गई दूसरे ने सुन ली, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। What is active listening? It requires involvement with the information and empathy with the speaker's situation, the basis for effective communication. So what is important for you to understand as a manager that you are going to become a potential manager, so you need to practice, you need to learn active listening, in which you have to involve yourself, you must have an empathy for the speaker. तो जितना ज़्यादा emotions के ऊपर कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट होगी उस लिसनिंग के अंदर वही इफेक्टिव होगी। विदाउट एक्टिव लिसनिंग बाकी जो लिसनिंग है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं, जो मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली उन्होंने जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। जब हम काम से रिलेटेड बातें या काम से रिलेटेड कोई पैगामात अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजते हैं तो डेफिनेटली उनको फॉर्मल होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इट कैन बी डाउनवर्ड, इट कैन बी आउटवर्ड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैरीज मैसेजेस फ्रॉम समवन हु होल्ड्स अ सीनियर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सबऑर्डिनेट्स। Managers may communicate downward by sending employees email messages, presiding a department meeting, giving employees policy manuals, posting notices on bulletin board, and reporting news in company newsletters. Many firms also define formal channels for upward communication. These channels encourage communication from employees to supervisors and upward to top management levels. Employee surveys, suggestion box, and systems that allow employees to propose new projects or voice complaints are all upward communication. This formal communication flows within the chain of command. जैसे मैंने आपको बताया कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, but the most important thing that we have to learn in it that it must be open and honest communication. जब तक कम्युनिकेशन ओपन ना हो, ऑनेस्ट ना हो, तो जैसे हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, उसका बड़ा नुकसान होगा। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपनी कम्युनिकेशन को ओपन करें और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें, फैक्ट्स को कम्युनिकेट करें। ओपन कम्युनिकेशन थोड़ा सा समझते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन क्या हो सकती है। विद ओपन कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज फील फ्री टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, ऑफर सजेशंस एंड इवन वॉइस कंप्लेंट्स।
कि लोग डरे हुए नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उनकी राय होती है, जो वो बताना चाहते हैं, जो वो समझाना चाहते हैं सबऑर्डिनेट्स को, जहाँ कोई वो कंप्लेंट्स करना चाहते हैं अपवर्ड अपने मैनेजर्स को, तो वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। लेकिन ये जो ओपन कम्युनिकेशन है, इट मस्ट हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दीज 7 कैरेक्टरिस्टिक्स? एम्प्लॉयज आर वैल्यूड, लोगों की कदर की जाए। कॉन्फ्लिक्ट इज इनवाइटेड एंड रिजॉल्व पॉजिटिवली, इख्तलाफ राय को जो है वो पसंद किया जाए, इख्तलाफ राय को इनक्रेज किया जाए और फिर पॉजिटिवली रिजॉल्व किया जाए प्रॉब्लम्स को। लड़ाई झगड़ों में ना पड़ जाएं लोग। इख्तलाफ राय जो है दैट इज़ गुड। क्रिएटिव डिसेंट इज़ वेलकम, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, क्रिएटिवली एग्जिस्ट करनी चाहिए। एम्प्लॉय इनपुट इज सोलिसिटेटेड, एम्प्लॉय जो हैं इस ओपन कम्युनिकेशन के लिए एम्प्लॉयज़ इंगेज होंगे, वो अपनी इनपुट देंगे, उनको सुना जाएगा। एम्प्लॉयज़ आर वेल इन्फॉर्म, ना सिर्फ उनकी बात सुनी जाती है बल्कि उनको वेल इन्फॉर्म रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं। और फिर जो भी कम्युनिकेशन हो उसके आखिर में फीडबैक इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कि फीडबैक जो है वो जारी रहना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को पता चलते रहना चाहिए कि जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी जो बात पहुंची है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। तो फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट हैं ओपन कम्युनिकेशन के लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वी यूज द टर्म ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन से आप ये समझें कि द ग्रेप वाइन इज एन इंटरनल चैनल दैट passes इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑफिशियल सोर्सेज। जैसे आपने एक अंगूर की बेल देखी होगी, तो उर्दू में ग्रेप वाइन को आप समझें कि जैसे एक बेल ग्रो करती है, तो इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल डेवलप हुआ होता है जहाँ से खुद ब खुद इंफॉर्मेशन फ्लो कर जाती है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है और इसको रोका नहीं जा सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू कैरी मैसेजेस आउटसाइड फॉर्मली ऑथराइज्ड चैनल। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो फॉर्मल चैनल से नहीं आती है, इनफॉर्मल चैनल से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करने जा रही है, क्या होने जा रहा है। मैनेजर्स try to control the grapevine with well managed communication। तो मैनेजर्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन in my opinion I would say that is not controllable all the times। Non-verbal communication, non-verbal communication transmit messages through actions and behaviors, gestures, postures, eye contact, tone and volume of voice, and even clothing choices are all non-verbal actions that become communication cues, have a far greater impact on communication rather than many people realize। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स हमें खुद से महसूस नहीं होता है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक्शंस हैं, जेस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट है, आवाज़ की जो टोन है, उसको ऊंची आवाज़ में बोलना, आहिस्ता आवाज़ में बोलना, हमने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, ये सारे के सारे जो हमारे एक्शंस हैं ये नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। सो managers and employees must be careful about non-verbal communication। और इस वजह से केयरफुल होना चाहिए कि हमें इसका पता नहीं चलता है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। when we know that non-verbal communication जो है ये एग्जिस्ट करती है और इस तरह से इसके मीनिंग कन्वे हो रहे होते हैं, तो इस वजह से बहुत भी केयरफुल होना पड़ता है मैनेजर्स को भी और एम्प्लॉयज़ को भी when it comes to non-verbal communication, because non-verbal communication is a critical component of communication process। External communication. Businesses use communication to maintain their operations and manage their relationship with their customers. Every communication with customers should promote goodwill. When communicating during any crisis, organizations must focus on their audience and know that what they say will be broken into sound bites। So, external communication के वक्त ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है।
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज अ मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेजर ऑडियंस। तो ये जो एक्सटर्नल कम्युनिकेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन किन के साथ एक्सटर्नली कम्युनिकेट करती है? वो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स होते हैं, वो दूसरी फॉर्म्स होती हैं, वो उसके कंपेटिटर्स होते हैं, वो जनरल पब्लिक होती है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो definitely when an organization is going to communicate externally, it must be careful about it. So every communication with customers should create goodwill. तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने अपने कस्टमर के साथ गुडविल को क्रिएट करना है और एक नेक नामी क्रिएट करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। सो कम्युनिकेशन, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई क्राइसिस फेस करने पड़ जाए तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से एक्सटर्नली कम्युनिकेट करना है? इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस क्विकली। पहली बात कि फौरन क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करें। डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग, डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग। फौरन बताएं, कम्युनिकेट करें, उसके ऊपर आकर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। पुट टॉप कंपनी मैनेजमेंट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस। जो टॉप मैनेजमेंट है वो आकर एक्सटर्नली कम्युनिकेट करें, वो प्रेस से बात करें। स्टिक टू फैक्ट्स, झूठी कहानियां ना गढ़ी जाएं, फैक्ट्स बताए जाएं लोगों को, फैक्ट्स पब्लिक को बताए जाएं, प्रेस को बताए जाएं। नेवर से नो कमेंट, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर नो कमेंट का आंसर नहीं आना चाहिए। हर क्वेश्चन जो प्रेस वाले पुट करें उसके ऊपर जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए। स्पीक टू योर ऑडियंस, इसका मतलब यही है कि भाई ऑडियंस के साथ बात करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, एंड ट्राई टू प्रेजेंट द फैक्ट्स। तो ये सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है क्राइसिस में एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने की। Okay, ji. Thank you very much for your patience listening and watching the lecture. Inshallah, see you next time. Take care. Allah Hafiz.